Okay, so as discussed, it will be doubt session regarding all the DPPs and any other doubt, any other query you have from any other book. So this question is from the DPP of series and parallel combination. That question number 10 is asked by Vrishti. Charge and potential difference across 8 microfarad. So ये कौन सा वाला case है? Which case it is? Circuits having extra connecting wires, right? Yes, sir. Numbering करके Numbering करके हम कर लेंगे. So if this point is A, this will also become A. Here it is 1, 1, 1. They all are connected together. And सर नीचे वाला भी 1, because it's connected now. 1, 1. Yes. सर नीचे भी था. And this is B. हाँ ठीक है, वो भी 1. Yes. So now if you draw this circuit again, it seems there are many capacitors are diffused. Many capacitors are short circuited. पहला capacitor 6 microfarad का है between A and 1. Between A and 1 it is 6 microfarad. 4 microfarad is between 1 and A. That is also there between 1 and A, 4 microfarad. 8 microfarad is again between 8A and 1. 8 microfarad. Then this 7 microfarad is between 1 and 1. It is short circuited. नीचे से ये 9 और 9 they are again short circuited. So only one to be 36 microfarad. And a battery of 40 volt is connected. Right? Vrishti, आपने ये बनाया था सर्किट? Yes, sir. 8 microfarad के अक्रॉस हमें चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस बताना है. So 4, 6 and 8 in parallel will become how much? 18. 18 and 36 in series. So 18 into 36 divided by 54. 12. So 12 microfarad is the overall equivalent capacitance of this series combination. Total charge that is delivered from here by the battery. Q is equal to C equivalent into V. 12 into 40, that becomes 480 microcoulomb. और ये divide हो जाएगा in the 3 branches Q1, Q2, Q3 as the ratio of their capacitances. So charge on the third capacitor जिसमें हमें calculate करना है C3 divided by C1 plus C2 plus C3 times total charge. C3 is 8. This C1 plus C2 plus C3 is 18. Multiply by charge. Charge is 480. Yes. Check which option is correct. So ये Q3 आपने कैसे निकाला? सब कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है ना? कर रहा है? नहीं सर. नहीं कर रहा है. Okay, so I think you are right. None of the option is matching. Sir 213.33 आ रहा है. Okay. अगर हम इसका पोटेंशियल निकाल के सब्ट्रैक्ट भी कर दें, V2 will be same Q upon C. So 480 by 36 volt. इसको 40 में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. 40 by 3. So the potential across this will also become V1 will also become 40 minus 40 by 3, which is how much? 80 by 3. 80 by 3, and again which is not in the option, so something is wrong. Yes, method is this method is correct. Let me confirm the answer with the सर C वाले के क्लोज आ रहा है सर.
सर 26.6 आएगा। सर बट उसमें नियरली लिखा तो नहीं है, ठीक है, छोड़ने से बेटर है नियरेस्ट ऑप्शन को टिक कर दे। यस सर। If it is close enough, then let me confirm the answer. आपका आंसर ये आया था दृष्टि? सर 28.4 आया था। अब बेटा voice is quite, volume is quite low. You got the similar answer? वो कह रही 28.4 आ रहा है। DPP4 question number 10 is yeah 213.3 to approximately 214, right? Approximately answer आ जाएगा. I think that's also given the question. Yeah, so it's coming, I guess 213.33 को हम 214 ले सकते हैं, approximately ले सकते हैं, right? Similarly here it is 26.67, उसको approximately 27 ले सकते हैं. So answer is C option. Next आपको डाउट था कैपेसिटेंस DPP3 क्वेश्चन 26. अच्छा, इसमें और किसी को कोई डाउट? Any other question Sir, from 11th. Sir 12th question. 11th and 12th, okay. And sir 14th also 14th. के पहले 10 के पहले 1 to 10, any other doubt? No? नो सर। No sir. Okay. क्वेश्चन नंबर 9 तो अभी हमने किया नहीं. क्वेश्चन नंबर 9 जैसे क्वेश्चंस अभी हमें करने हैं आरसी सर्किट, that we haven't done yet. Question number 11 is the doubt. 11 विनीत आपका डाउट है? Yes, sir. मेरा भी है। The resultant capacitance between A and B is 1 microfarad and the value of C. Okay, so I think the remaining all are C. So value is missing here. That is the Yes, sir. Values I'm missing. remaining all of them are राइट. इसमें वैल्यूज थोड़ी मिसिंग है. मैं रिवर्स कर देता हूँ, मैं वैल्यू लिख देता हूँ फिर सॉल्व कर लेता हूँ. इसमें जो ये 12 के साथ लगा हुआ है, दैट वन इज 6. इसकी वैल्यू है 6 माइक्रोफैरेड. तो 6 और 12 आ जाएगा सीरीज में, और फिर वो 4 के साथ पैरेलल में आ जाएगा. Then this is in series, that is 1 microfarad. The values are printing mistake here. This is 1 microfarad. फिर this one is 2 and 2. Okay, I think this one is C only. This is unknown. और इधर ही आ जाएंगे. Four microfarad, 4 microfarad, and 4 microfarad.
These are the values और फिर इससे आपको कैलकुलेट करना है. So this question was incomplete. इसमें value is missing थी. Only this one is C. So 6 plus 12, 6 and 12 series में it become how much? 4. 4 plus 4 8. 8 के साथ 1 आ जाएगा पैरेलल सीरीज में 8/9. ऊपर की तरफ 8/9 आ गया और 4 और 4 8 और 8 and 4 in series. It becomes 32/12 which is 8/3. So ऊपर वाले ब्रांच में आ गया 8/9, नीचे वाले ब्रांच में आ गया 8/3 और इसके साथ C सीरीज में 8/9 8/3 जो आएगा पैरेलल उसके साथ C सीरीज में and that is equal to 1 microfarad. ये वैल्यूज मिसिंग थी, आप इसको लिख लो, मैं वहां पे इसको पेस्ट कर देता हूँ. Yes, sir. Done. आंसर मैच कर रहा है. Yes, sir. अब आ जाएगा. It was the printing mistake. Yeah, with these values you can find, you will get the answer should be D, I think, according to the book. You can check and verify. Next, it is next कौन सा था इस DPP में? Sir, 12th and 14th. 12th. 12th हमने किया है. 12 capacitor on the cube. We get we found all the three cases across the body diagonal, phase diagonal, and edge. ये between the two opposite edges on the same plane. Two opposite edges on the same plane मतलब किसकी बात हो रही है ये? Phase diagonal की. It's talking about the phase diagonal. This and this. So कैसे solve किया था हमने? कैसे calculate किया था? Aryan, are you there in the meeting? And इसके लिए हमने Kirchhoff use नहीं किया. Yes. Kirchhoff use किया था for body diagonal. This is the phase diagonal. Phase diagonal के cross कैसे calculate किया था हमने? आशुतोष, equivalent of a cube cross phase diagonal. किसी को याद है? Phase diagonal के cross कैसे calculate किया था हमने? Equivalent capacitance. Yes. Phase diagonal के cross कैसे ये कौन calculate? सा है, क्या नाम है इसका? Phase diagonal हो गया ना ये. Opposite जो edges हैं उनके corner पे that become phase diagonal. Phase diagonal के लिए क्या किया था हमने? इसको 3D से 2D में convert किया. Cube के 3 cases किए ना हमने यार, ऐसे क्यों कर रहे हो? We Yes, did sir. body diagonal, phase diagonal, and across an edge. Body diagonal के लिए use किया था network symmetry. The charge comes and gets divided. Phase diagonal के लिए we convert this into from 3D to 2D. There is a vertical plane of symmetry. There is a vertical plane of symmetry. These two capacitor lies on plane of symmetry. उसको हम वहां से हटा देंगे and then you can simplify it. ऐश्वर्या, क्यूब वाले किए हमने क्लास में नहीं किए? सर मुझे याद नहीं है. मैंने जितने लेक्चर्स अटेंड किए उसमें तो नहीं था. बेटा और किसी को मिस हो गया था? लास्ट फ्राइडे वाली क्लास. एक क्यूब वाला मुझे भी, मैं नोट्स अभी चेक करा नहीं करा. सर लास्ट फ्राइडे तो मैं आई. राइट करवा दो, मे बी फ्राइडे को लास्ट फ्राइडे को. हमने क्यूब का नहीं किया, ऐसा हो सकता है? इज इट पॉसिबल? करा था सर हमने लास्ट फ्राइडे वाली क्लास में. सर क्वेश्चंस में करा है ये क्वेश्चन. सर लास्ट फ्राइडे में आई नहीं थी सर, और शायद अमन भी नहीं आया था. हाँ, मैं भी नहीं आया था. हाँ, ये हमने किया है बेटा 3D सर्किट में. दिस इज द कॉमन एग्जांपल दैट एवरी क्लास आई टेक. ओके सर. तो मैंने 10th वालों को भी कराया है अभी. यस. सो सी नहीं है कि सब बस इतना ही कि 3D को 2D में करना है.
3D को 2D में कन्वर्ट करते हैं फेस डायगोनल के लिए. बॉडी डायगोनल के लिए नेटवर्क सिमेट्री थी, so we use that network symmetry that the charge will be equally divided in 3 branches. और तीसरे वाले में भी हमने कुछ थोड़ी सी नेटवर्क सिमेट्री यूज की थी. ये समझ गया ना, इस 3D को हमने यहाँ सर से ये प्रेस वाला, कर. सर ये वाला तो मैं समझ गया, डायगोनली वाला. वो फेस बस डायगोनल. मुझे नेटवर्क करके एक बार एग्जांपल अगर दिखा दो तो सही. दिस इज द फेस डायगोनल वन. फेस डायगोनल Yes. वाला हमने ऐसे किया. इसमें इसकी वैल्यू कितनी आएगी पहले ये निकालो. व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस केस? Yes. What's the answer, Aishwarya? सर आई एम डूइंग, एक बार ऑप्शंस देखते हैं. Yes, it is simple. 4c by 3. ये दोनों तो हट गए. यस सर, बी ऊपर बी. का c by 2, c by 2, c by 3, c by 2, c by 2. c यस by सर, 2 बी. ऊपर ब्रांच में आएगा, c by 2 नीचे आएगा और c by 3 बीच में आएगा. देखो पैरेलल में. ठीक है, चलो कोई नहीं, हम एक बार क्विकली देख लेते हैं बाकी दोनों केसेस कैसे किए थे. If we have to find across a body diagonal, for a body diagonal we used Kirchhoff law, assuming this symmetry of this network. तो Kirchhoff law में क्या करते हैं? We connect a battery. This is the body diagonal. जब सीरीज पैरेलल काम नहीं करता है तो हम Kirchhoff law यूज करते हैं. This charge Q gets divided into the 3 branches, Q by 3, Q by 3, Q by 3, equally divided because these 3 networks are exactly symmetrical. This Q by 3 then further divided into Q by 6, Q by 6. ये Q by 3 भी दोनों में equally divide हो जाएगा, Q by 6, Q by 6. इधर ऊपर का Q by 3 दोनों में equally divide Q by 6 and Q by 6. Q by 6, Q by 6 मिलके Q by 3. Q by 6, Q by 6 मिलके फिर से Q by 3. इधर का Q by 6, इधर का Q by 6 मिलके Q by 3. फिर ये सब मिलके Q. So ऐसे हम एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एज्यूम कर सकते हैं across the body diagonal, क्योंकि एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक there are 3 paths and all 3 paths are exactly identical. So पहले हमने चार्ज को डिवाइड कर लिया and now we will write the loop law for this outermost loop. एक बैटरी और ये साइड के 3 कैपेसिटर, -V plus Q by 3C plus Q by 6C plus Q by 3C is equal to 0. ये है across the body diagonal when there are 12 capacitors are connected in this capacitor. Right? इसको सॉल्व करके हम Q by V की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगी 6C by 5 and Q upon V is total equivalent capacitance of this मुझे एक डाउट है अब सर, एक बार ये समझा दो, ये 0 का और ये कौन से 4 वो हैं V जो आपने लिए हैं और 0 क्यों लिए? नहीं, फिर से ये किरचॉफ लॉ से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने में क्या करते हैं? वी कनेक्ट अ बैटरी, बैटरी से चार्ज लेते हैं Q, पूरे सर्किट में डिवाइड करते हैं और फिर हम कोई भी एक लूप लेके Q by V की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. यहाँ पर हमने इस नेटवर्क सिमेट्री को यूज कर लिया दैट व्हेन द चार्ज इंटर्स एट A, it has 3 possible paths and those 3 paths are exactly identical. Right? इसलिए चार्ज तीनों में इक्वली डिवाइड होगा, 1/3 1/3 1/3. अच्छा यस सर, मतलब Q by 3, Q by 6 फिर Q by 3 ऐसे में. फिर ये आगे 2 इक्वल ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है which is again identical branches. Network is exactly identical, so again it will be equally divided into 2 branches, Q by 6, Q by 6. ऐसे इधर भी Q by 6, Q by 6, इधर भी Q by 6, Q by 6. वापस ज्वाइन होके फिर से बन गया Q by 3, Q by 3 and Q by 3 which become Q. So ये एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने पहले एज्यूम कर लिया.
करेक्ट। उसके बाद किसी Yes, भी sir. एक लूप की इक्वेशन ले लेते हैं जिसमें कि हमें Q और V का रेशियो मिल जाए, रिलेशन मिल जाए, उससे हम Q by V कैलकुलेट कर लेते हैं। Q by V comes out 6C/5। ओके Yes, sir. Understood. Thank you. तीसरा वाला थोड़ा मुश्किल था, अक्रॉस एन एज। अभी हमें यहाँ पे निकालना है इन दोनों के बीच में, बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B। So तो पहला वाला बेस वाला था जिसपे बेस का डायगोनल वाला, और दूसरा वाला पहला था फेस नेटवर्क डायगोनल, इसको बोलते हैं फेस डायगोनल। अगर हम यहाँ पे फेस ऐसे लगा रहे हैं तो फेस डायगोनल में लगा रहे हैं। दिस इज द फेस डायगोनल ऑफ अ क्यूब। सेकंड वन इज बॉडी डायगोनल ऑफ द क्यूब, and third is across an edge of a cube. तो यहाँ पर दोनों का मिक्स अप है, मींस देयर इज अ नेटवर्क सिमेट्री आल्सो, बट तब जब हम इस छोटे वाले को भूल जाते हैं। इफ यू लीव दिस वन सिंगल कैपेसिटर, अभी जो बाकी दोनों ब्रांचेस हैं दोज आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल, so charge in these two branches will be going exactly same amount of charge, right? Understood this part? यहाँ से जो ये दो ब्रांचेस है ये आइडेंटिकल लग रही है, इधर एक कैपेसिटर इधर एक कैपेसिटर, Yes, sir. वो आगे तो दो में Q/2 डिवाइड हो गया, ये Q/2. आगे दो में डिवाइड। ये नॉट Q/2 क्योंकि एक C भी था ना, अभी तो हमने उसको सिर्फ इग्नोर कर दिया। इन दोनों में सेम अमाउंट ऑफ चार्ज आएगा। इफ इट इज Q1 दिस विल आल्सो बी Q1, और तीसरे वाले में डिफरेंट। सो टू नेटवर्क्स आर आइडेंटिकल, थर्ड वन इज डिफरेंट। अब इसमें क्या है, चार्ज भी सेम है, कैपेसिटेंस भी सेम है, सो सेम पोटेंशियल ड्रॉप होगा, व्हिच मींस फाइनली द पोटेंशियल ऑफ दीस टू पॉइंट्स विल बी सेम। दोनों को हम 0.11 अज्यूम कर लेते हैं। करेक्ट। ये Q2 तो आ गया इधर बाय सिमेट्री, इन दोनों ब्रांचेस में अगेन द सेम चार्ज Q1 विल कम बाय द सेम लॉजिक। ये जहां से आ रहे हैं वहां से सेम चार्ज इन सेम कैपेसिटर, सेम पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा होगा, व्हिच मींस द इनिशियल पोटेंशियल इज आल्सो इक्वल। इन दोनों को 2 और 2 ले लिया, and the remaining two are 3 and 4. So ऐसे हमने सर्किट में नंबरिंग कर ली। with the help of network symmetry we found that which points are at same potential, 1 2 3 and 4. Now locate each capacitor and draw in the circuit. A to 1 how many capacitors? फ्राइडे क्लास की भी रिकॉर्डिंग डाली होगी मैम ने, वैसे चेक कर लेना। A to 1 how many capacitors? 2. 2. A to 1 2 capacitors. 1 to 2 how many capacitors? Sorry, 1 to 3 how many capacitors? Again Sir, 1. Sir, 1 ही 1 to 3. 1 to 3 and 1 to 3. अच्छा. Yes, sir. 3 to 4 there is only one. 2 to 4 again 2 capacitors. 2 to B 2 capacitors. 1 to 2 एक ऊपर का 1 to 2 और एक नीचे का 1 to 2. There are 2 capacitors between 1 to 2 also. कितना हुआ टोटल ये? 11. एक जो बचा था वो AB वाला. This is the circuit which can be solved. Got it? सर बस 1 मिनट मेथड समझ गया ना? सर समझ गया मैं पूरा. It's not done. Sure है?
Understood the method? Yes. सर बस एक और डाउट मुझे एक अभी आया सर Q जब A से जा रहा होता है चार्ज तो 2 की तरफ तो Q1 हो जाता है फिर Q2 के बाद किधर जाता है वो मतलब उसका क्या पाथ है ये तो Q2 के सीधे आ गया ना, बी बैटरी है, बैटरी में आ जाएगा ये Q1 इधर डिवाइड होगा Q3 Q4 में, जैसा भी होगा सिमेट्रिकली डिवाइड होके वापस फिर से Q1 बन जाएगा। जब यहाँ से 3 ब्रांचेस में डिवाइड हुआ था, एक में Q2 2 में Q1, ऐसे यहाँ पर भी 1 से Q2 आएगा, 2 से Q1 आएगा, बाई सिमेट्री ओनली। तो क्या मैं ये है कि डिवाइड होता रहेगा Q1 आगे जाके सिमेट्रिकल होगा ना, अगर Q1 के अंदर Q3 Q4 तो इधर जाके भी Q3 Q4 और फिर वो आपस में कंबाइन होके बाई सिमेट्री से फिर से Q1 बन जाएंगे। ओके सर बीच में डिवाइड होगा ना कि बीच में फर्दर डिवीजन हो रहा है, बीच में फर्दर ब्रांचेस हैं। यस सर राइट, इसका आंसर कितना है? व्हाट इज द फाइनल कैपेसिटेंस? क्विकली कैलकुलेट करो, ये हम कर चुके हैं। फिर में से क्लास ट्राई टू check the recording, कुछ मिस ना हो इसलिए। सर रिकॉर्डिंग में से प्रेप पे या फिर ऐप पे जो ये लेक्चर के रिकॉर्डिंग में YouTube चैनल पर है और क्लास प्लस के एप्लीकेशन पर। सर मतलब लैपटॉप से कर सकते हैं एक्सेस? बेटा YouTube भाई से भी कर सकते हो एक्सेस। ये एप्लीकेशन क्योंकि एंड्रॉयड और iOS बेस्ड है तो इसको आप लैपटॉप से नाम भी क्या चैनल का नाम क्या 100+ एकेडमी में हमने शायद लिंक शेयर की थी ग्रुप में, नहीं तो मैं फिर से बोल देता हूँ, कर लेना उसको। शेयर कर ओके वेरी गुड। और इस डीपी में ये कितना आंसर? दिस शुड कम आउट 12C/7। ये 2C 2C and C 2C 2C C C and C in series C/2 C/2 and 2C 5C/2, नीचे से 5C/2 आ जाएगा। दिस इज 2C 2C will become C 5C/2 and C in series 5C/7, उसमें C ऐड करोगे 12C/7। Right, 12C/7 will be the answer. Yeah, any more doubt from this DPP? Any other doubt? और किसी को डाउट इस डीपीपी में, किसी क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 14 कर लिया विनीत? क्वेश्चन नंबर 14। सर हाँ मेरा डाउट था 14। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आई वांट एवरीवन टू सॉल्व दिस। The figure shows two identical parallel plate capacitor connected to a battery with a switch S closed. Initially switches is closed, which means दोनों में चार्ज होगा CV, दोनों में एनर्जी होगी हाफ CV स्क्वायर, और now switch is opened and free space between the plate of capacitor is filled with dielectric of dielectric constant 3. तो कैपेसिटेंस तो दोनों में 3C 3C हो जाएगा। बट अब जब हम एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, इसमें दोनों की कहानी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। ए विल रिमेन कनेक्टेड विद द बैटरी, ए के क्रॉस पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, बी सर्किट से निकल चुका है सो बी में चार्ज कांस्टेंट रहेगा। द चार्ज विल रिमेन कांस्टेंट अक्रॉस बी एंड पोटेंशियल विल रिमेन कांस्टेंट। हमने जो दो केसेस करे थे, जब बैटरी कनेक्टेड रहती है तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, और जब हम बैटरी हटा देते हैं तो charge constant रहता है। So the both will be applied in this question in each of the capacitor. Initially energy तो हो गई हाफ CV स्क्वायर हाफ CV स्क्वायर, हमें दोनों का रेशियो निकालना है, हाफ CV स्क्वायर प्लस हाफ CV स्क्वायर। फाइनली जब हमने इस कैपेसिटर स्विच को ओपन कर दिया, only A remains connected through the battery, A के क्रॉस पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, B के क्रॉस चार्ज कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज नाउ B is removed from the circuit. जितना भी इस पे चार्ज था पहले इनिशियल था Q डिवाइड बाय 3C और इस पे 3C into V स्क्वायर। आफ्टर द switches is opened, there are two capacitor और दोनों में अब एनर्जी का फॉर्मूला डिफरेंट लगेगा। जो बैटरी के साथ कनेक्टेड है उसमें हाफ 3C V स्क्वायर
और जो बैटरी से रिमूव है Q स्क्वायर बाई 2 टाइम्स C. फाइंड द रेशियो. अच्छा, बिफोर और आफ्टर यानी इनिशियल बाई फाइनल करना है. अंडरस्टूड दिस. ये बैटरी से रिमूव हो गया सर्किट में, सो चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट इवन आफ्टर इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक. और ये बैटरी से कनेक्टेड है, सो पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट. So what's the answer? Yes, what is the answer? Yes, किसी ने तो क्या होगा आंसर? Shreya, what's the answer now? सर 5/3. हाँ, मतलब इनिशियल बाय फाइनल करना है तो 3/5. ओके. Next doubt. Next. Next. ये आगे किए हैं किसी ने एडवांस वाले? नहीं. विदित यस सर. किए हैं डीपीपी? नहीं सर, ये वाला नहीं किया. ये वाला नहीं किया या पूरी डीपीपी नहीं? सर ये वाला नहीं किया. तो डाउट में पूछो अगर ये वाला नहीं किया तो. अब 12th में आ गए, अब ये ढीला मामला चलेगा नहीं. ये सारी डीपीपी मस्ट है, इसके बाद आपको एक्स्ट्रा और करना है. दिस डीपीपीज आर कांसेप्ट बिल्डिंग डीपीपीज. क्वेश्चन नंबर 15. In the circuit shown in the figure, there are two parallel plate capacitors, each of capacitance C1. तो दोनों capacitance C है. Switch S1 is pressed first to fully charge the capacitor C1 and then released. The switch S2 is then pressed to charge the capacitor C2. After some time, S2 is released and then S3 is pressed. After some time. Very nice. स्टेप बाय स्टेप. पहले क्या हुआ? पहले S1 को प्रेस किया. S1 को प्रेस करेंगे तो कैपेसिटर C1 के अक्रॉस 2V0 का पोटेंशियल आ गया. सो इस पे राइट साइड में 2CV0 और लेफ्ट साइड में -2CV0. ये आ गया चार्जेस. फिर हमने S1 को ओपन कर दिया. नहीं. एंड देन रिलीज्ड. S2 is then pressed to charge the capacitor C2. अब हमने इसको चार्ज किया, प्रेस किया तो क्या होगा? जो चार्ज था 2CV0 वो दोनों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा बिकॉज बोथ द कैपेसिटर्स आर exactly same. So after the second step, the charge will be CV0, CV0. दोनों पे प्लस, इधर दोनों पे -CV0 and -CV0. The switch S2 is pressed, the charge after some time S2 is released and S3 is pressed. अभी S3 को प्रेस करेंगे तो इसके क्रॉस पोटेंशियल है V0. इसके क्रॉस पोटेंशियल है V0, so there is no more charge will flow. The charge on the upper plate of C1 is how much? 2CV0. नहीं, अपर प्लेट पे कितना आएगा? -CV0. तो डी करेक्ट है. Charge on the upper plate of C2 is 0. No. Charge on the upper plate of C1 is CV0. No. Answer is D. So brings the answer D. The charge on the upper plate of C1 is
right? Answer is D. Yes sir. स्टेप बाय स्टेप चार्ज डिवाइड करते जाएंगे, दैट्स इट. ओके, और बताइए डाउट इस वेव से, डाउट फ्रॉम दिस डीपीपी. आरसी सर्किट छोड़ के बाकी सब कुछ करना था आपको. यस, नो डाउट. नो डाउट, अच्छी बात है. नहीं किया इसका मतलब. क्वेश्चन नंबर 27. सॉल्व क्वेश्चन नंबर 27. इट्स अ गुड क्वेश्चन. स्विच टाइप वाले क्वेश्चन कुछ हमने किए थे, उस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है. Consider situation shown in the figure. The figure switch S is open for a long time and then closed. Charge flows through the cell when S is closed. Yes, try this question. हमने एक ऐसा similar question किया है क्लास में. स्विच क्लोज करने पे बैटरी से कितना चार्ज पास होगा, स्विच से कितना चार्ज पास होगा, एनर्जी कितनी लॉस होगी. कैलकुलेट. यस, मेरा समझ में आ रहा ना करना क्या है. पहले एस ओपन था, दोनों सी सी सीरीज में. व्हाट इज द इनिशियल चार्ज गिवन बाय बैटरी? इनिशियल चार्ज गिवन बाय द बैटरी इज सी बाय 2 टाइम्स ई. जब उसको स्विच ऑफ कर क्लोज कर दिया तो शॉर्ट सर्किट हो गया, उसका चार्ज खत्म हो गया. देन द एक्स्ट्रा चार्ज गिवन इज सीई ओनली. सो हाउ मच द चार्ज गिवन बाय सेल व्हेन एस इज क्लोज्ड? कैन यू एक्सप्लेन दिस वन अगेन? हां बेटा, एक बार फिर समझा दो. फिर समझा देता हूं. आपने ये वाली क्लास ये भी फ्राइडे को किया था हमने. स्विच वाला कॉन्सेप्ट किया था ना एक. सो मैं एब्सेंट था फ्राइडे को. क्लास में कितनी क्लास में एब्सेंट रह गया भाई? तो बस एक ही क्लास मिस करी मैंने. क्लास में इतना कुछ करा दिया हमने? सर क्या? एक ही क्लास में इतना कुछ कर लिया हमने? सर पता यही स्विच भी करवा लिया और वो क्यू वाला भी. देखो सर, वीडियो देख लूंगा एक बार लेक्चर. वीडियो देख लेना बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है. जेई में क्वेश्चन इन्हीं टाइप पे आते हैं, स्विच वाले एंड इसमें लॉजिक क्या होता है, जब हम स्विच को क्लोज करते हैं तो देयर इज सम मॉडिफिकेशन अगर इन द सर्किट. अभी एस जब ओपन है, व्हेन एस इज ओपन it is just like two C capacitors in series. C in series. Total charge which is initially given by the battery, suppose Q1, जो हम calculate करते हैं by C equivalent to V. Since now there are two C and C in series, it becomes C by 2. So initially this much is the charge given by the battery. जब हमने इसको close कर दिया, बीच में एक वायर की तरह कनेक्ट हो गया. सेकेंड कैपेसिटर गेट्स शॉर्ट सर्किटेड, उसके दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल सेम हो गया, ये शॉर्ट सर्किटेड. अभी सिर्फ एक कैपेसिटर बचा है, उसमें जो चार्ज कैपेसिटर से आएगा दैट इज सीई. कितना चार्ज बैटरी ने प्रोवाइड किया है स्विच की वजह से? Q2 माइनस Q1.
charge given by battery in this case is Q2 minus Q1, that is CE by 2. आगे समझ में अमन ये चार्ज कितना एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया बैटरी ने ऑन क्लोजिंग द स्विच इज फाइनल चार्ज गिवन बाय बैटरी माइनस इनिशियल चार्ज गिवन बाय बैटरी. यस सर. तो इसका फर्स्ट पार्ट हो गया. सेकंड और जो कॉलम मैच करने थे हमें, work done by battery when S is closed. Work done by battery is charge into potential difference. बैटरी जितना चार्ज प्रोवाइड किया है CE by 2 into potential EMF होता है E के इक्वल, so work done by battery is CE square by 2. तो work done by battery आ जाएगा P के इक्वल. Second is equal to P. Second P सभी में. Third is change in energy stored when S is closed. Change in energy stored final minus initial when S is closed. फाइनल कितना आया? ये तो जीरो हो गया, शॉर्ट सर्किटेड, हाफ CE स्क्वायर, हाफ CE स्क्वायर. इनिशियली कितना था? हाफ C by 2 times E square. It will become CE square by 4. अमन, यस सर. समझ आ रहा है? यस सर. अभी आ तो गया थोड़ा. Heat developed when S is closed. Heat developed का फॉर्मूला बताया था मैंने. Heat produced, बैटरी का वर्क डन, कितना बैटरी ने वर्क किया, some part of that is stored and remaining is lost in the form of heat. Okay? Right? यस सर. Work done by battery था CE square by 2 minus CE square by 4. That will be the answer. स्विच क्लोज करने पे एक्स्ट्रा चार्ज, स्विच क्लोज करने पे कितना चेंज हो रहा है एनर्जी में, और स्विच क्लोज करने पे कितनी हीट निकल रही है. नेक्स्ट में डाउट था कैपेसिटेंस डीपीपी, क्वेश्चन नंबर 26. Missed this one? Missed? Okay. Anyone having doubt from this? हमने इसके कुछ questions किए. बिल्कुल आपकी आवाज नहीं आ रही है. ये तो हमने कर लिया था शायद कुछ लास्ट क्लास में. We did this? Yes or no? क्वेश्चन नंबर 7 किया था शायद हमने. क्वेश्चन नंबर 7 कर लिया था, राइट? कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन कि हमने चार्ज कितना दिया है. कैपेसिटेंस इज सेम एप्सिलॉन नॉट A by D. यस, डाउट बताइए, इसमें डाउट क्या है? अच्छा, another one, okay. This one, question number 26.
क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट एंड 3 का सेकंड पार्ट तो छोड़ दो, अभी रेडियोएक्टिविटी हमने पढ़ी नहीं है, लीव इट, हम डिस्कस कर चुके हैं पहले. These type of questions you can skip in which modern physics है, ये भी modern physics का है, leave it, या modern physics के बाद पढ़ेंगे. ओके सर. कैपेसिटेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कैपेसिटर्स, तो ये हमने कुछ कुछ कर लिए थे, अभी बाकी अगर आपके डाउट नहीं है तो फिर आप करो. Solve these questions right now. Question number 8. Solve question number 8. Parallel plate capacitor C with plate of area 1 square unit and separation D is filled with a liquid of dielectric constant K is equal to 2. The level of liquid is D by 3 initially, and if the liquid level decreases at a constant V, then the capacity of capacitor after T second. Right? क्या करेंगे इसमें? क्वेश्चन नंबर 8 is a J question only. क्वेश्चन नंबर 8 किया किसी ने? नहीं किया तो अभी करो फटाफट. J question, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना ट्रिकी है, क्वेश्चन तो उतना मुश्किल नहीं है. A parallel plate capacitor having a area of this and 1 square unit separation D is filled with dielectric. Initially इनके बीच की separation है D, उसमें D by 3 किसी liquid से, which has a dielectric constant of 2. Level liquid D by 3 initially, and the level start decreasing gradually at a constant speed of V. Then the capacity of capacitor after T second. तो D by 3 और V speed से ज़्यादा T टाइम में कितना बचेगा? D minus VT. Because now this liquid level is going down with a constant speed of V. So at any time t, this is d by 3 minus Vt. ऊपर से बचेगा, उसको d से सेपरेट कर देंगे. टू डी बाई 3 प्लस Vt, ये ऊपर का आ जाएगा. And then these two capacitors are connected in series. These two capacitors are connected in series. Then टोटल आंसर ए आना चाहिए. यस सर, यही आ रहा है. ये आ गया था बेटा? यस सर. ओके, वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 3. और बताइए डाउट क्विकली. डाउट नहीं है तो इसको सॉल्व करते जाओ. फिर क्वेश्चन नंबर 10, 11.
Question number 10. The region in which energy is stored has a volume of. So capacitance है capital C. C जो है लिखा हुआ that is the capacitance of that spherical region. और हम उससे radius निकाल लेंगे. The region in which energy is stored, capacitor में energy कहाँ store होती है? दोनों के बीच के gap. हमें इसके अंदर का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. रेडियस r है, दूसरे रेडियस 2r है, तो जो वॉल्यूम हमें फाइंड करना है दैट इज 4 पाई बाई 3 2r क्यूब minus 4 pi by 3 r cube. We have to calculate r in terms of c. c का फॉर्मूला था 4 pi epsilon naught ab divided by p minus a. कैपेसिटेंस स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए फॉर्मूला था 4 pi epsilon naught ab divided by b minus a. a is inner radius, b is outer radius. यहाँ से r की वैल्यू निकालेंगे c के टर्म्स में and then we substitute here. Calculate. डन. बेटा आंसर आया किसी का? क्वेश्चन नंबर 10 करना है, साथ में देखना नहीं है कि बाद में कुछ और करने लग गया, साथ में दूसरी टैब खोल के गेम खेलने लग गए. क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या आ रहा है? वो c की वैल्यू आ गई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. यहाँ पर a है r, b है 2r, so 2r square upon 2r minus r, so that become 8 pi epsilon naught r. यहाँ से r की वैल्यू निकाल लेंगे, that will be c divided by 8 pi times epsilon naught. Substitute back in this formula, so 2r cube 8 minus 1 7 7 into 4 pi by 3 times r cube. ये है वॉल्यूम जिसमें एनर्जी स्टोर है inside the capacitor. Right? Okay. Answer for question number 10 is D. 7 ऊपर आ रहा है, so से भी आप समझ सकते हैं. Question number 11. A solid cylindrical conductor. सर एक सेकंड डाउट है. 10th चेक में वापस आना मेरे से प्लीज. तो कैसे निकाला मुझे समझ नहीं आया. हाँ बेटा, समझ नहीं आया कि निकला कैसे आपका. ना क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि कैपेसिटर में वो वॉल्यूम बताओ जहाँ पे एनर्जी स्टोर होती है. कैपेसिटर में एनर्जी कहाँ स्टोर होती है? दोनों की गैप में. दोनों के बीच में. यस सर. This is that volume in which energy is stored. आउटर का वॉल्यूम 4 pi by 3 2r cube माइनस इनर का वॉल्यूम 4 pi by 3 r cube. राइट. कैपेसिटर C गिवन है, C के टर्म्स में हमें R निकालना है बिकॉज C इज इन टर्म्स ऑफ R. 4 pi epsilon naught AB upon B minus A, ऐसा कुछ था फॉर्मूला. A here is R, B here is 2R. सब्स्टिट्यूट कर दो and then calculate. यस सर निकल गया वैसे न्यूमेरिकल मिस्टेक. यस सर. Next question is question number 11. A solid cylindrical conductor of radius A and charge Q is placed coaxially with a cylindrical shell
of negligible thickness and radius b, outer surface earth, कैपेसिटी पर मीटर लेंथ. हमने कैपेसिटेंस निकाली थी टोटल लेंथ के टर्म्स में, पर मीटर के लिए निकाल लो कितने आ गई. We derived the formula for capacitance of a cylindrical capacitor. उसमें L को बस 1 पुट कर देना है. Yes. Aman, यस सर, done. तो कर रहा हूँ मैं सर. Okay. Question number 11 तो हमने क्लास में किया था 2 pi epsilon naught L divided by ln. So 2 pi epsilon naught यानी 1/2 क्या आ गया? Answer is A. For a cylindrical capacitor to increase the capacitance, the most effective method is, ये बताया था हमने क्या? B upon A में A को थोड़ा बड़ा करते जाएंगे तो log छोटा होता जाएगा. A is the inner to decrease the radius of inner cylinder. A बढ़ाते जाएंगे तो ये B upon A छोटा होता जाएगा. Log की वैल्यू और छोटी होती जाएगी. Then accordingly it will become quite large. Question number 13. Two sphere of radii A and B are placed at a distance D apart. D is large compared to A and B. Capacity of the system. एक स्फीयर को पॉजिटिव टर्मिनल से दूसरे स्फीयर को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे. वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम टू कैलकुलेट द टोटल क्वेश्चन नंबर 13. टू कैपेसिटर आर प्लेस्ड डिस्टेंस दी अपार्ट. एक को पॉजिटिव से एक को नेगेटिव से, तो एक पे आएगा पॉजिटिव चार्ज एक पे आएगा नेगेटिव चार्ज. एंड देन अकॉर्डिंगली प्लस क्यू और माइनस क्यू, उससे हम दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे. क्यू अपॉन वी इज कैपेसिटेंस. Spheres of capacitor charges q and minus q, उनके बीच में जो डिस्टेंस है that is b. रेडियस आर a and b. तो पहले वाले के सरफेस पे खुद की वजह से पोटेंशियल के क्यू बाई ए और दूसरे वाले की वजह से पोटेंशियल माइनस के क्यू बाई डी. सेकेंड वाले सरफेस पे खुद की वजह से पोटेंशियल माइनस के क्यू बाई बी प्लस के क्यू बाई डी. The potential difference between the two is V1 minus V2. KQ common, so Q upon 4 pi epsilon naught common. 1 upon A plus 1 upon B minus 2 upon D is equal to V. यहाँ से Q by V की वैल्यू आ जाएगी. Q upon V is capacitance, which becomes 4 pi epsilon naught 1 upon A plus 1 upon B minus 2 upon D. This option, C option.
Question number 14. A long cylindrical capacitor consists of 4 long concentric cylinders with effective radii A, B, C, and D. Capacitor A and B are joined together by metal strip. So एक अंदर बन गया कैपेसिटर A और B का, एक बाहर बन गया C और D का, and both will be in parallel. Both will be in series, one after another. एक इन दोनों के बीच में कैपेसिटर बन गया in this region between the two C और D का C1, और एक बाहर वाले दोनों के बीच में बन गया C. There are two capacitors. बीच में क्योंकि वायर से कनेक्टेड था, so there will not be any charge, there will not be any electric field. C1 and C2, these two are connected in series. बेटा समझ में आया ना क्या हुआ? चार है, बट चार में बीच में हमने वायर से कनेक्ट कर दिया, तो इन दोनों के बीच में there is no energy. Energy will be stored only in these two cylindrical capacitor, and they both have the same charge, so they can be considered in series. C1 is 2 pi epsilon naught upon ln A by B. C2 is 2 pi epsilon naught divided by ln C upon D. Because they are connected in series, so 1 upon C connected is 1 upon C1 plus 1 upon C2. Answer is C option. C option. A parallel plate capacitor is made of two circular plates separated by distance 5 and dielectric constant 2.2 between them. When the electric field directly is 300 and the power 4, the charge density of the positive plate will be closed. So जब डायरेक्टली डाल देते हैं, then electric field become 1 upon k times. So 1 upon k times sigma by epsilon naught is 3 into 10 to the power 4 volt per meter. इससे हम सिग्मा कैलकुलेट कर लेंगे चार्ज डेंसिटी. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड. राइट, आप लोगों ने क्वेश्चंस किए नहीं है, गलत बात है. ये तो मैंने कराया था शायद क्वेश्चन नंबर 21. लेट मी डू दिस. 21 21 टाइप का किया था हमने लास्ट फ्राइडे. यस और नो? कोई है क्लास में? Yes, sir. And class. Triangular slab question we did last Friday. Yes or no? इसको विनीत. विदित. Yes, sir. ये किया था हमने लास्ट क्लास ना? नहीं. नो सर. नो या यस, क्या बोल रहे हो? नहीं सर. नहीं सर. ओके. थोड़ी सी मैथमेटिक्स ज्यादा है इसमें, इसलिए थोड़ा आराम से दो हेड मैथ्स. ये पैरेलल प्लेट, ये जे 2019 मेंस में आया हुआ क्वेश्चन भी है. Between these two plates there is two dielectric slabs, but the shape of dielectric slab is in the form of triangular prism.
K1 K2। अगर ये बनाते वरना ये खतरनाक सा हो जाएगा। ये ऊपर वाली प्लेट है, नीचे वाली प्लेट है। द प्लेट एरिया इज ए, एरिया को हम लेंथ और ब्रेड्थ में ब्रेक कर लेते हैं। दिस इज L and this is the width B. The distance between the plate is, gap between the plate is D. So ये ऊपर वाली प्लेट है, this is one metallic plate और ये नीचे वाली प्लेट। इसके बीच में हमें दो अलग अलग डायरेक्टरी डाल दिए। सो वी कैन नॉट अप्लाई डायरेक्ट फॉर्मूला, हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें हर एक जगह पे अलग अलग लेंथ, अलग अलग थिकनेस का डायरेक्ट्रिक है। ऊपर से x डिस्टेंस पे ले लेते हैं एक छोटी सी स्ट्रिप, इसकी थिकनेस है dx। कंसिडर अ स्मॉल स्ट्रिप dx at a distance x from one end. So now these ये दो कैपेसिटर बन गए छोटे छोटे, एंड दीज टू आर कनेक्टेड इन सीरीज ओनली। कौन सा? एक ये ऊपर वाला। सो सपोज दिस लेंथ इज y, ये इधर था x बेस तक। ऊपर वाली जो लेंथ बचेगी दैट विल बिकम d माइनस y बिकॉज d इज द टोटल थिकनेस। इस पूरे स्लैब में, पूरे कैपेसिटर में हमने ये छोटे छोटे दो एलिमेंट निकाल लिए, एंड नाउ दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज, कैन बी अज्यूम्ड एज कनेक्टेड इन सीरीज। ये ऊपर वाला और ये इसके नीचे वाला। ऊपर वाले की कैपेसिटेंस ले लेते हैं dC1, नीचे वाले की कैपेसिटेंस ले लेते हैं dC2 बिकॉज दे आर क्वाइट स्मॉल and they are connected in series। बेटा ये समझ में आ रहा कौन से वाले चूज किया हमने? This capacitor plate area is how much? What is the plate area? B into dx। ये इनके प्लेट का एरिया। सो जब ऊपर वाला कैपेसिटेंस लेंगे dC1, it will come out to be K1 epsilon naught, एरिया हो जाएगा B dx डिवाइडेड बाय D माइनस y। नीचे वाला कैलकुलेट करोगे dC2 K2 epsilon naught B dx divided by y, and these two small capacitors are connected in series। so इसके लिए हम कर लेंगे C equivalent का फॉर्मूला होता है इन सीरीज C1 C2 divided by C1 plus C2। इंटीग्रेट कर लेंगे इस छोटे से एलिमेंट को, छोटी स्ट्रिप जो हमने लिए डेज की, ऑन द एंटायर लेंथ ऑफ x स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 10। dC1 कितना है? K1 epsilon naught B dx divided by D minus y, K2 epsilon naught B dx divided by y divided by K1 epsilon naught B dx divided by D minus y plus K2 epsilon naught B dx divided by y। ऐड करो उसको। सिंप्लीफाई दो, एक तो B dx कैंसिल आउट हो जाएगा, B dx epsilon naught and K1 epsilon naught B dx, sorry not K1, B dx और epsilon naught get cancelled, B dx and epsilon naught get cancelled। ऊपर आएगा K1 K2 epsilon naught B dx
y dy cancel, it will be k1y plus k2 times d minus y. चेक करें ना, आपको समझ में आ रहा है? योर कैलकुलेशन शुड बी सेम. इस पूरे कैपेसिटर के अलग अलग जगह पे अलग अलग थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक स्लैब है. दैट्स व्हाई वी हैव टू इंटीग्रेट. इंटीग्रेशन करने के लिए वी अज्यूम दिस फंक्शन. इंटीग्रेट करने के लिए हमें y को x में चेंज करना पड़ेगा. एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन y एंड x? बाय दिस सिमिलर ट्रायंगल y upon x will be equal to d upon l. So हम y को लिख सकते हैं xd by l. k1 k2 epsilon naught b dx divided by k1 minus k2 times y plus k2 times d. Substitute the value of y and then integrate. बेटा ये झेल रहा है, ऊपर से तो नहीं जा रहा है. समझ आ रहा है? मैथ्स थोड़ी हौच-पौच सी है. बट दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन जेईई मेंस. तो एडवांस लेवल का भी है, बट मेंस में अब एडवांस टाइप के क्वेश्चन आने लग गए. इज दैट क्लियर? यहाँ तक के स्टेप? यस सर. ऐश्वर्या, आर्यन, okay, substitute this value. Y become xt by l. Y become xt by l. k1 k2 epsilon naught b times dx divided by k1 minus k2 into xt by l. k1 minus k2 into xd by l plus k2 times d. k1 k2 epsilon naught b divided by d common. Divided by d common. ये आ जाएगा dx. k1 minus k2 x plus k2 times l. और ये नीचे का l फिर ऊपर आ गया l times k1 k2 epsilon naught l into b becomes total area upon d. इसको इंटीग्रेट कर देते हैं. dx divided by k1 minus k2 x plus k2 times l. Integration limit from 0 to l. k1 k2 epsilon naught a upon d ln of k1 minus k2 x plus k2 l limit from 0 to l divide by k1 minus k2. L पुट करोगे तो k2 k2 कैंसिल आउट हो जाएगा. 0 पुट करोगे तो बचेगा k2, which means k1 by k2 ln of k2 by k1 by k2 आ गया. ये k1 k2 upon k1 minus k2 epsilon naught a upon d ln k1 by k2.
right? So this is the equivalent capacitance of this triangular type of dielectric slab. Hopefully ये समझ में आया होगा क्या किया था हमने यहाँ पे. This is the JEE Mains 2019 question in your DPP. This was question number. आप NCERT के और SL के डाउट्स भी आप भेज सकते हो. कोई संकोच वाली बात नहीं है कि हम बड़े बड़े डाउट ही भेज सकते हैं. Any question? कुणाल ने कुछ डाउट सेंड किए थे but he is not in the class, so I'm not taking his. So यहाँ पर अच्छा इसमें K1 K2 शायद अपोजिट है, वो आपको ध्यान रखना है. Epsilon C is n epsilon naught a by d log of 2. Accordingly we will find out, compare it. पूरी स्ट्रिप में अलग अलग जगह पे अलग अलग थिकनेस है, so we have to choose a small thickness dx. We find these two small capacitors dc1 and dc2, दोनों सीरीज में उसे छोटी स्ट्रिप का, and then we add integrate for the entire length. Right? नहीं समझ में आया तो इस बार खुद से अपने आप करके देखना. This integration is थोड़ा सा लंबा है but it's एक बार क्वेश्चन नंबर दिखा दो. Question number 21. These are type question. मैंने K1 K2 शायद अपोजिट ले लिया वहाँ. चेक कर लेना एक बार. राइट ठीक है. ओके थैंक यू. बाकी बचे क्वेश्चन आप कर लेना और इसके जो सोल्यूशन है वो असाइनमेंट वाले सेक्शन में ऐप में अपलोड करवाता हूँ. तो मैं वो पूछ रहा था कि जो JEE मेन वाली बुक थी वो अब लेने आ सकते हैं क्या वहाँ पे सेंटर? बिल्कुल आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते. ठीक है. और वो भी सबमिट कर दूंगा अपना एप्लीकेशन फॉर्म उनको देना है. ठीक है, ले सकते हैं आगे. ओके थैंक यू.